to the field of education. Ms. Priyanka Brar is a dynamic leader in education. She is a visionary educationist, accomplished public speaker, administrator, teacher, and counselor. With an illustrious career of over 16 years, she has done MSc Honours Biochemistry, MBA, BA. She started her career at Patent Company New Delhi, one of the Asia's top firm. Also served as an administrator in prestigious institutions like the Dashmesh Group of Schools and DAV Schools. She is an experienced CBSE resource person, guiding educator across Punjab and a public speaker and pedagogical innovator. And she is currently working as a principal at St. Fried Public Senior Secondary School, Shri Muktsar Sahib. We welcome you, ma'am, and now I kindly request to our school dignitaries to escort Ms. Priyanka Brar to receive bouquet as a token of love. Bouquet as a token of love. बलिहारी गुरु अपने जिन गोबिंद जियो मिलाए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में,
मुझे ऐसे लगा कि साक्षात ईश्वर की स्तुति हमें हुई है और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी हुई होगी। So now I would like to invite our venue director, Mr. Ravi Kumar, to share some experience with participants. Please, sir. ये ताली मैंने कैसे बजवाई है, जिन्होंने नहीं बजवाई है उनको किससे बजानी पड़ेगी। Respected resource person of the day, director sir, principal ma'am, my senior fellows and teachers of Imperial International School and guest teachers, very good morning to all of you. Good morning, sir. I, Ravi Kumar, in the capacity of venue director, I extend my heartiest welcome to all of you to this workshop. It will be a very wonderful workshop. As Gurpreet sir told you that he'll share some experiences, right? तो अंदाजे गुरप्रीत एक बात आपसे करता हूँ कि सर से पांव तक मुझे पूरी कहानी याद है। सर से पांव तक मुझे पूरी कहानी याद है, मुझे आज भी वो शख्स मुंह जुबानी याद है। मैं बात कर रहा हूँ अपने रिसोर्स पर्सन्स की। टुडे इन दिस हॉल आई एम द luckiest person. The reason is I was in the same group at the TOT day, right? और जो कुछ एक ट्रेनिंग क्या होती है? What is training? Training is an environment. थोड़ा गलत हो सकता हूँ। Training is an environment. It is just to create an environment, right? It is just to adopt that environment, follow that environment, and spread that environment, right? Training is not only that here the slides will go on and you will watch it. The training will happen on your table also. The training was happened at the main stage also. Anything training can happen, right? I would like to share one experience from the TOT workshop that we were in 6 members in the group and it was a science group, right? And from the whole group I was the odd one out. क्या होता है odd one out? सबसे अलग. The reason is they all are the masters of science. It was science group. They were discussing that which topic to present on the second day. They were discussing the huge and complex and difficult terms, heredity, variation, ये वो. मैं बिल्कुल डरा हुआ इनमें शांत बैठा था क्योंकि मेरे से ये बस की बात नहीं थी, right? और here I would like to recall the teamwork spirit of Miss Priyanka के करेंगे और उसके बाद मैंने घर जाकर के वो सारा प्लान चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू माय विश. उसको इजी करने के लिए मैंने मैम चेंज कर लिया वो सारा. शी वाज द ओनली पर्सन एट 10:30 शी appreciated my work and she said that it's okay. And one more thing is she has no individual glorification. On the second day when it's time to present, she knows he don't know English, he don't know science concepts. She has given me the opening address of the presentation. Another sign of that she is no sense of individual glorification. और ज्योति मैडम की मैं बात करूं, देखिए चीजें छोटी सी बहुत होती है किसी के बारे में जो आपको बड़ा कुछ उस बारे में बता जाती है. ज्योति मैम को हमने मैम एक चार्ट हम प्रिपेयर कर रहे थे तो इन्होंने एक चार्ट बनाया बढ़िया से. पूरी टीम ने उसको कहा कि नहीं दिस इज नॉट ओके, मेक इट अगेन. इन्होंने फिर से बनाया, टीम ने फिर कुछ डिसाइड कर लिया कि नाउ इट्स नॉट ओके, फिर इन्होंने फिर बनाया. तो दैट पेशेंस लेवल शी हैज. तो इसी स्पिरिट में मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि वी ऑल विल क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग हियर. एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल. थैंक यू वेरी मच. In this, now I would like to invite our respected principal, Ms. Navneet Devgan, for a formal welcome to our esteemed resource persons. School for Excellence. Feel pleasure to welcome our resource person, Ms. Priyanka Brad and Ms. Jyoti Yadav. Welcome, ma'am. And the teachers, being a part of this event, make this room meaningful.
with our discussions and participations. कि जितना आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे। इससे ज्यादा मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस यही कि I heartily welcome to all of you and I look forward to a wonderful and knowledgeful workshop ahead. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now it's time to begin the much awaited session. Learning is a journey, and today we are blessed to have two remarkable mentors guiding us through the concept of happy classroom. So without further ado, let me invite our first resource person, Ms. Priyanka Brar, to take over the session. Please, ma'am. Thank you. Hope you will enjoy the session. Already, school authorities, host school, Gurpreet sir, principal ma'am, venue director Mr. Ravi, बहुत कुछ बोल दिया। अब मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, तो क्या बोलूं? So let us start with किससे? अच्छा, what is the heading for today's workshop? Happy class. तो क्या आपके अंदर हैप्पीनेस है सब में? Yes, ma'am. कुछ टीचर्स के फेस पे हैप्पीनेस दिखाई नहीं देगी। मैम, हैप्पी रहिए, खोना नहीं है। दिस I'm happy right now. नहीं, पहले नहीं थी मैम। सेकंड डे मैम अभी आई, आपके फेस पे स्माइल खोए हुए। मंजू बाला मैम, ओके, वेरी नाइस। अब सबके फेस पे स्माइल है? Yes, ma'am. मैम कहाँ घूमो? पिंक सूट, हाँ जी। हियर स्माइल, हैप्पी। दिस इज व्हाट? दिस इज हैप्पी क्लासरूम। तो एवरीबॉडी इज हैप्पी नाउ? Yes, ma'am. स्माइलिंग? Yes, ma'am. पीपीटी एक बार should we start? अब इसमें एक और भी लाइन में ऐड करना चाहूंगी। अगर मजा नहीं भी आया तो जाते जाते बोल के जाना, मैडम मजा आ गया। ठीक है? वो झूठ हो सकता है, वैसे तो हम कहते हैं झूठ नहीं बोलना, पर अगर नहीं मजा आया तो फिर भी क्या कहते हैं? मजा आ गया मैडम। वी हैव नेवर सीन सच लाइक वर्कशॉप बिफोर। तो आज के लिए जो मैंडेटरी है, समथिंग विच इज मैंडेटरी, वो ये है कि आप सबके चेहरे पे एक अलग सी स्माइल, चाहे उसको आप प्लास्टिक वाली कह लीजिए चाहे ओरिजिनल, बट वो पूरा दिन रहनी चाहिए। और शाम को आपको घर पे जाके बोलना है कि आज जो वर्कशॉप थी ना, उससे हमारे जॉ मसल्स जो है वो स्ट्रेस हो गए। आप कहने लत्ता खलियां पै गया। सो योर फेस शुड हैव दोस खल्ली। अच्छा, खल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? खल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिम्पल नहीं बोलते मैडम, ऐसे मत बोलो। इट इज नॉट डिम्पल। खल्लियां को क्या बोलते हैं? मेरी साइंस क्रैम्प्स पड़ते हैं। तो लोगों के क्रैम्प्स कहाँ पड़ते हैं? टांगों में। और आज की वर्कशॉप के बाद आपके क्रैम्प्स कहाँ बनने चाहिए? इन योर जॉ मसल्स। सो लेट अस स्टार्ट विद, क्या लिखे? हेलो आई एम। तो द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स। अब सबको क्या करना पड़ेगा? स्माइल तो सबने दे दी, एवरीबडी इज वियरिंग अ स्माइल ऑन द फेस। बीच बीच में ना ये वाले जो सर बैठे हैं, इनकी स्माइल उड़ रही है। सर, योर गुड नेम प्लीज? अभिषेक बच्चन। ओनली मिस्टर अभिषेक। तो सर आपको चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, मैम। ब्रेकफास्ट यू हैव? ये ना ब्रेकफास्ट खत्म हो गया? No, नहीं है? ओके, तो डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, which language you people are comfortable? हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी? Three? Both तो three नहीं होते। All three you are comfortable. Trilingual. Trilingual, बड़ा अच्छा वर्ड है ना? Trilingual. So it means I will use all the three language बीच में। कभी हिंदी बोल लूंगी, जब भूल जाऊंगी फिर पंजाबी भी बोल लूंगी, और जब वो भी दोनों खत्म होगी लैंग्वेज तो इंग्लिश बोल लूंगी। क्योंकि इंग्लिश में सबका हाथ क्या होता है? शायद हो सकता है मेरा भी हो, शायद, पता नहीं। बाकी आप जज करके शाम को बताना। मैडम बहुत बढ़िया इंग्लिश, फ्लॉलेस इंग्लिश, ये सबने जानते हैं।
मैम ये हो नहीं सकता कि आपका हाथ तंग हो। नहीं, आपने जाते हुए जरूर बोलना है फ्लॉलेस इंग्लिश, ठीक है जी। सो सबसे पहले जब मैं आई थी, व्हेन आई एंटर्ड इन द हॉल, एक मैंने वर्ड यूज किया था सबके लिए। वो क्या था, थोड़ा मेमोरी को शार्प करें। रवि सर आप भी बैठ जाओ, थक जाओगे नहीं, बीच बीच में जाओ। इंपीरियल स्कूल टीम फ्रॉम वर्दी डायरेक्टर सर, व्हेन वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट, उन्होंने कहा कि मेरी टीम जो है वो बड़ी अच्छी टीम है। दिस इज रेयरेस्ट ऑफ रेयर। All words of praises, guy was really nice. So, हाँ जी, memory recall करें जरा। हाँ जी, one favor for us. हाँ जी। Could you please recommend a highest increment in the salary? आज की वर्कशॉप में मैं आपको हैप्पी क्लासरूम के अलावा मोह माया से ऊपर कैसे इसके लिए भी आपको Ma'am, it's not a home, it's a right time. It's only Maya. Right time, ma'am. It's only right time. हाँ जी, रिकॉल करिए मेमोरी, सबको याद आ गई मैंने क्या बोला था? When I just entered in this hall. Good morning. Good morning. क्या बोला था मैंने? मुझे सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो क्या बोला था? Once again, good morning. पीछे वाले कुछ बोल ही नहीं रहे। अभी क्या बोलेंगे हम? अभी क्या बोलेंगे? हाँ जी, हेलो। अभी क्या बोलना चाहिए हमें? क्या बोलना चाहिए? वंस अगेन गुड मॉर्निंग। ओहो, अभी क्या बोलना चाहिए? सर आप बताइए प्लीज। सर आप ही, आपका बर्थडे है मिस्टर विजय पाल, आप बताइए अभी क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग ही बोलनी चाहिए। तो बोल ही नहीं हूँ मैं बार बार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो गुड मॉर्निंग क्या बोलना चाहिए बताइए प्लीज। मैंने बोला था पेंसिल कंपनी का असर हो गया। यू विल से हैप्पी मॉर्निंग मैम। Happy morning, ma'am. ठीक है जी, क्लियर हो गया? Yes. अब स्लाइड पे क्या लिखा है? हेलो आई एम, इसका मतलब हेलो आई एम हैप्पी। शाबाश, मिस्टर अंकुश के लिए जोरदार तालियां ना हो। अरे ध्यान से सुनना है, ना हो means no clapping। आप क्लैपिंग सुननी है इंस्ट्रक्शंस पर, ठीक है जी। हाँ जी, फिर क्या Hello, बोला? I am a good listener, but मैंने नहीं बजाई। बट यू आर लॉन्गिंग फॉर क्लैप्स ना। हाँ जी बताइए, लास्ट वाले टेबल से कोई बताएगा मुझे। हेलो आई एम, क्या करना चाहिए इसके लिए? यस मैम, पेन नहीं दूंगी पर इसके लिए। हाँ जी, Hello, I am happy teacher. आई एम अ हैप्पी टीचर। वो तो सारे ही मैंने सबके मुंह में प्लास्टिक स्माइल तो जमाई थी पहले। Hello, I am Gurpreet. हेलो आई एम गुरप्रीत। ओके, A बस? happy teacher. अ हैप्पी टीचर। अब तो मैडम के लिए क्लैप कर दीजिए प्लीज। तो अब आपने सबने क्या करना है? यू आर टू टेल योर सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। उसके साथ साथ आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। और मैं एक बार बता दूं, पहले आपको लोग बोलोगे हैप्पी मॉर्निंग मैम, जैसे छोटे बच्चे बोलते वैसे मत बोलना, ठीक है? बच्चे बोलते ना गुड मॉर्निंग मैम, वो गुड तो पता नहीं होती, उनकी शक्ल देख के बैठ जरूर हो जाती, जैसे वो इतनी तरंगों में बोलते हैं ना। सो इट शुड नॉट बी देयर। तो बच्चों को हमेशा सिखाओ दैट दे मस्ट स्पीक इन अ प्रोफेशनल वे। दे शुड से प्लेनली गुड मॉर्निंग मैम। और आज की वर्कशॉप के बाद आपने बच्चों को क्या सिखाना है? दे शुड से हैप्पी मॉर्निंग मैम, हैप्पी आफ्टरनून मैम, बाय बाय मैम। अब वो ये मत कह दे रहा हैप्पी बाय बाय, क्योंकि हैप्पी बाय बाय कभी नहीं होती है ना, नहीं होती ना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। पहले ग्रीटिंग्स, हैप्पी मॉर्निंग, देन योर नेम, designation, 2 things. If you are from an outsider school, then your name of your school, and then you are happy for what, or happy because of what, or you remain happy for what. मेरी इंस्ट्रक्शन समझ आ गई? सबको क्लियर है? मैं एक बार ट्रेलर दूं?
चलो, हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक तो एनर्जी इतनी जीरो है ना, खा के आप थक गए हो, क्या खाया था सर? बहुत लाइट होता है, स्नैक्स हैवी थे, तीन चार गोलियां खाई तभी। सो फुल एनर्जी और स्माइल दोनों चीजें होनी चाहिए, ओके? So I am saying now, introducing myself. Happy morning everyone. I am बोलने तो दो, अब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने आप को, बस अब आपके हैप्पी मॉर्निंग बार नहीं करनी, ठीक है? सो हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आई एम प्रियंका, आई एम सर्विंग एज अ प्रिंसिपल। ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ था, सारी बायोडाटा उन्होंने, कहाँ गए वो, ये बैठे, तो इन्होंने बायोडाटा ऑलरेडी मेरा सुना दिया। सो नाउ माय सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज जस्ट स्पीकिंग एंड स्पीकिंग। मुझे खुशी कब मिलती है? जब मैं बहुत बोलती हूँ, तब मिलती है। और जब मैं उदास होती हूँ, इसका मतलब है मेरी जुबान जो है लॉक हो चुकी है। कहते हैं ना, लेडीज के लिए ये बड़ा मशहूर है कि जो लेडीज होती है वो कभी चुप नहीं कर सकती। सो दैट फंडा जो है मैंने बहुत अच्छे से अपना रखा है। I can never be quiet. So my secret of happiness is I always love to talk in the public. Okay? So there must be something which gives you happiness. So I'm giving you 5 minutes time. 5 मिनट में अपनी introduction सोचिए, फिर everybody will be given a chance and everybody will have to speak. Okay? Time starts now. सोच लिया? Okay. Happy morning, sir. I'm Ankush Beniwal and I'm happy just because of the kind presence of our today's resource person, Madam Priyanka Brad and Madam Jyoti Yadav. And I'm working as a vice principal. हमसे बॉस नोट मिलते हैं, सेम मैंने लिखा। हाँ जी मैम। Happy morning everyone. I am Priyanka Rani from Imperial International. एक बार इनके लिए 2 ताड़ियां आपने मारनी है, ये प्रियंका है। Science. Yes ma'am, I am CGT Science. अच्छा, एक और मारो मेरे सब्जेक्ट की भी। वेरी नाइस। I am very happy in my teaching और जब मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है तो मैं और ज़्यादा खुश होती हूँ। वेरी नाइस। Happy morning, teachers. I am Sony from Imperial International School. I am happy with my little children with my classroom. You are Sony. सलोनी। Happy morning, everyone. मैम माइक ले लीजिए, सबको सुनना चाहिए, पीछे वाले बेचारे। Happy morning, everyone. I am Manpreet Kaur from Aspire International School. I work as a TGT science teacher. I am happy with my mother's happiness and in my profession. वेरी नाइस, दैट्स समथिंग रेयर, यू नो, मदर्स के लिए हैप्पी होना है समथिंग रेयर। थोड़ा क्लैप क्लूप कर दिया करिए, मैं आपको प्रैक्टिकल मैडम आप नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं मैम, शाम से मेरा भी गला ऐसे ही है। Teachers, I am Gurpreet, serving as a PRT teacher, and I am happy to see the good refreshment in the school. As expected, इनके लिए जरा तालियां मारिए। तो अगर फॉर आउटसाइडर टीचर्स, अगर आपको लगे कि यहाँ पे कुछ खाने के लिए खत्म हो गया, तो फिर आपने सीधा इनके पास जाना है, क्योंकि वो सब इन्होंने ही खाया होगा। That you are the reason for our hunger. Okay? हाँ जी। Hello, happy morning to all of you. I am Kirti from IISc and I am happy because I am joined Happy Classroom today. Classroom Happy morning everyone. I am Manju, teacher of IISc. I am happy because today I joined Happy Classroom. Happy morning, teachers. Happy morning, ma'am. She is Priyanka, ना? Yes, sir. तो इनके लिए जरा clapping करिए। I am a teacher of grade 1st class, Imperial International School. I am happy with my class and my family. Good morning teachers. I am Manjot और मुझे खुशी तब मिलती है जब मैं बोलती हूँ और सब सुनते हैं। स्पेशली जब मेरे हस्बैंड सुनते हैं बैठ के मैं बोलती हूँ। ये बात ठीक है मैम, मुझे लगा मुझे यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, प्लीज आपको तो खुशी नहीं होगी मैम, क्योंकि आज के दिन से मैं ऐसा भी नहीं है मैम। ओके, थैंक यू। हाँ जी। Morning, ma'am. एक और
She is saying happy good morning. नहीं ये पहले वाले मैडम ने कहा मैम इन्होंने नहीं कहा, मुझे लगा ये नहीं कहा। पहले वाले मैडम ने कहा अच्छा अच्छा, उनका पहले वापस लेने वाला है। हाँ जी। I am Kajal and my reason is with staff and with student. Okay. Yes. Please clap. My name is Anmol Makkad and I'm working as TGT in English at Aspire International School. And my reason for my happiness is being myself. That's it. Being yourself. Okay. करवाएंगे जरा आज आपसे एक एक्टिविटी जिसमें हम आपको चेक करेंगे। Sure. Right? Sure. हाँ जी मैम। हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैम मेरे को माइक की लोड नहीं है। नहीं मैम फिर भी देना पड़ेगा। Please use mic। और फोटोग्राफ खराब हो जाते हैं ना, ये पोज बड़े बनवाते हैं। मैम पीटीआई टीचर को ना माइक की जरूरत नहीं होती। ओके मैम। मैं हैप्पी तब रहती हूँ जब मेरे साथ बच्चे ग्राउंड के अंदर प्ले करते हैं सभी के सभी। ओके। हाँ जी नेक्स्ट। Happy morning, ma'am. I Kiranpreet. I'm serving as TGT Mathematics in Imperial International School for Excellence. मैम मैं अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ खुश रहती हूँ। मैंने बंद करने को नहीं बोला। If you're happy, 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 touch your feet, feet, feet. If you're happy, 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 touch your head, head, head. If you're happy, 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 touch your cheeks, cheeks, cheeks. If you're happy, 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 touch your back, back, back. If you're happy, 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 touch your feet, feet, feet. If you're happy, 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 touch your head, head, head. If you're happy, 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 touch your cheeks, cheeks, cheeks. If you're happy, 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 touch your back, back, back. Happy, 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 touch your feet, feet, feet. If you're happy, 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 touch your head, head, head. If you're happy, 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 touch your cheeks, cheeks, cheeks. If you're happy, 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 clap, 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 clap. Okay, okay. Thank you, thank you. Just asked you within the school timings in the recent past. Thank you.
ਜੁਆਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਭੂਆ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਆ ਭੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਥੀ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਪਥੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੰਪਥੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇੰਪਥੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੂਆ ਭੂਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੁਆਏ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੂਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜੁਆਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਰੇਡੀਅੰਟ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਟੀਚ ਕਰ ਰਿਹਾ TGT ਮੈਥਸ ਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ +1 2 ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫੇਅਰਵੈਲ ਹੈਗੀ +1 2 ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੈਡਨਸਡੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਕ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਗਿਫਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਐਂਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੁਆਏ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਐਂਗਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੁਆਏ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਕ ਬਾਕਸਰ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਡਾਂ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2024 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਕ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਮੈਚ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਫਾਈਟ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਰੋਕ ਪੰਚ ਮਾਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫਾਉਲ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਿਬ ਬ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰਤੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
second is light reflection. Then your class may be anti weather. कभी उसमें कुछ क्लासेस में गर्मी ज़्यादा लगती है, कुछ क्लासेस में ठंड ज़्यादा लगती है, ऐसे कुछ रिसोर्स हो सकते हैं। और कुछ फ्लोर डैमेजेस वगैरह के उसमें हो सकता है, राइट। और इनएप्रोप्रिएट फर्नीचर, कभी क्लासरूम में हम लोग जाते हैं तो कुछ क्लासेस में फर्नीचर बड़ा कंफर्टेबल होता है, कई बार इनएप्रोप्रिएट फर्नीचर होता है, जैसे कि कई बार बच्चे बड़े हो, बेंच छोटे हो जाते हैं, ठीक है, या बच्चे छोटे हो, बेंच बड़े हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कई बार जैसे आपके एज पर योर करिकुलम यू नीड्स अ प्रोजेक्टर, यू नीड एलईडी स्क्रीन, यू नीड अ कंप्यूटर, समटाइम्स इट मे नॉट बी देयर, सो दैट विल बी द रीजन। फिर है कि ओवर स्ट्रेंथ, हम कई बार क्या करते हैं, क्लासेस में ओवर स्ट्रेंथ हो जाती है। ओवर स्ट्रेंथ मींस कई बार क्लासेस मर्ज हो जाती हैं एडजस्टमेंट की वजह से, देन यू कांट इफेक्टिवली टीच योर क्लास, राइट। देन लेटरल एंट्रीज, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है लेटरल एंट्रीज की। जैसे आपने अप्रैल में सेशन स्टार्ट कर दिया, मई जून तक अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपने 3 चैप्टर करवा दिए, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि पिछले स्टूडेंट्स को, जो नए आ रहे हैं उनको फिर से करवाना, और बाकी जिन्होंने कर लिया है उनको रिवीजन करवाना, तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। Next challenges are related to my staff room. Again, I am saying it's a general use of mobile phone. It's very common, right? इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं आपको। Then subgroups in the staff room. कि हर टीचर के छोटे-छोटे subgroups बनते हैं। Then it start with backbiting, irrelevant talk. ठीक है, तो अपना एक बिल्कुल आप क्या करते हैं कि अलग-अलग ग्रुप बना के अपने आप को उस ग्रुप का एक पार्ट बना करके आप दूसरों से अलग कर लेते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। देन ओवर गॉसिप्स, स्टाफ रूम में बैठ के अगर एकेडमिक्स की बात करें, करिकुलम की बात करें, सिलेबस की बात करें, पीरियड्स की बात करें, तो बहुत अच्छा है। और ओवर गॉसिप्स में कि हम हा कर रहे हैं, ठीक है, वो करना चाहिए बट इररिलेवेंट, जिसका कोई सेंस नहीं। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने, चैलेंजेस, जितना हमें टाइम मिला है, इनमें से कुछ गलत भी हो सकते हैं, जितना भी टाइम मिला है 5-6 मिनट में हमने ये करते हैं। सर कोई एक चैलेंज ऐसा जो हम ओवरकम कर सकते हैं इजीली, इसमें से बताइए। स्टाफ रूम वाला, लेट अस टॉक अबाउट सब ग्रुप्स। सब ग्रुप्स वाला कैसे हैंडल कर सकते हैं? यूज ऑफ मोबाइल, वी कैन मेक सम पॉलिसीज व्हेन टू यूज और व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। एंड वी कैन आल्सो मैनेज द सब ग्रुप्स एंड ओवर gossips by making such an environment that is visible to all, right? that avoidance कैसे होगी? सब ग्रुपिंग की अवॉइडेंस कैसे होगी? सब ग्रुप्स की अवॉइडमेंट ऐसे हो सकता है कि हमें इट्स अ काइंड ऑफ मॉरल वैल्यू, कि अब जैसे हमें इट इज आल्सो अ सब ग्रुप बट इट इज नॉट अगेंस्ट समवन एल्स, वी आर नॉट बैकबाइटिंग ये बैच इनकी बात कर रहा है या उसकी बात कर रहा है, तो इट्स अ काइंड ऑफ मॉरल वैल्यूज दैट वी मस्ट इनकलकेट इन आवरसेल्फ बीइंग अ टीचर. Yes, right? That's true. And next, ma'am, over gossip, it is similar with the subgrouping. And that is part of subgrouping. Over gossiping starts only when we have subgroups. Or for lateral entries, we should design the pattern of the class in such a manner that the students who are coming late, they must have a different classroom for 15 days, so that both the groups will come equivalent, then we can teach them effectively. That is gap filling. Basically, yes. We can do such remedies for gap filling. Please clap for that. Very well explained. Hanji, next group, please. Being a teacher and being a student. अकेला टीचर बच्चे को हाइट्स पे नहीं लेके जा सकता और अकेला बच्चा खुद अपनी हेल्प से हाइट्स पे नहीं जा सकता। अगर टीचर उसका बैकअप ले रहा है तो ऑब्वियसली बच्चा घर पे जाके जो हमने यहाँ पे करवाया है उसका अगर बैकअप ले तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस हाइट्स पे जाएंगी। तो दोनों के एस्पेक्ट पे इसको पैरेलल हमें लेके चलना होगा। The next one is different understanding levels. जैसे मैम ने बात की कि heterogeneous groups होते हैं हमारी क्लास में, तो हमें individual needs के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज और उनको गाइडेंस और हेल्प प्रोवाइड करनी है ताकि हम इंडिविजुअली हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट वन इज स्कूल एंड फैमिली एनवायरनमेंट। यस, कि स्टूडेंट का स्कूल में अपने टीचर्स के साथ और अपने पीयर ग्रुप के साथ कैसा रिलेशन है, वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पा रहे हैं और अपने टीचर के साथ सेफ फील कर रहे हैं और एक सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड हो रही है। ये नहीं कि टीचर क्लास में आए और स्टूडेंट पहले ही डर जाए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे टीचर के लिए वेट करें कि हाँ बेल हो गई, अब उस मैम का पीरियड है, उस सर का पीरियड है, ताकि एक अच्छा और सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो। दैट इज कॉल्ड हैप्पी क्लासरूम। The next one is mental and physical health.
अगर स्टूडेंट घर से मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर आ रहा है और उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है, तो वो क्लासरूम में एंगेज होगा। जैसे सर ने अभी एक एग्जांपल दी थी 10th क्लास के स्टूडेंट की, कि वो स्टूडेंट को अगर मेंटली सर ने सपोर्ट किया तो उसकी एकेडमिक्स और हर एरिया में उस बच्चे ने इम्प्रूव किया। द नेक्स्ट वन इज क्लास मैनेजमेंट। फर्स्ट इज इमोशनल बैलेंस ऑफ चाइल्ड एंड टीचर। यही कि कनेक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट्स में। Teachers, please be quiet even if your turn is over. Please. प्रॉब्लम्स को शेयर करें। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, कि स्टूडेंट एंगेज रहना चाहिए। जैसे अभी सर ने बताया कि अगर बैक बेंचर्स फाइट कर रहे हैं जो कुछ ऐसा, तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्लास में। हमें सभी स्टूडेंट्स को किसी न किसी काम में एंगेज करके रखना है। मीन्स कि इसमें हम ये ले सकते हैं कि ये नहीं है कि एक ग्रुप तो टेबल पे टीचर के पास झुंड बना के खड़ा है और बाकी जो पीछे 5-7 बैठे हैं वो फाइट ही कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट एंगेज होने चाहिए प्रॉपर्ली। इवन हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि एक बच्चा है, मनदीप सर है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं क्लास में, मैंने इनको पीछे से उठाया अपने पास बिठा लिया। अगर हर बार ऐसा करूंगा तो एक बच्चा जो है प्रोएक्टिव, जो हमेशा आगे बैठना चाहता है और हमने उसको पीछे किया, तो वो इस एक्टिविटी में चला जाएगा कि सर मेरे को आगे ले लेंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हमें ऐसी सिचुएशन के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का यूज करना चाहिए। तो दैट इज द रेमेडी आल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट इसके लिए आई वुड लाइक टू ऐड पॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज पार्ट ऑफ दिस। तो वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, दैट इज इम्पोर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर। अगर टीचर अंडरस्टैंड करेगा then only we can make it a happy class। क्योंकि चैलेंज है ना, जैसे he has given one example कि बच्चा पीछे बैठा था तो one time तो he may pinpoint, but अगर हर बार ही उसको बिठाएंगे तो the one who is actually desiring to sit on the front will not be able to do that. So this is one part. Yes, please continue. Any other? बोल रहे? नेक्स्ट है स्टाफ रूम चैलेंजेस। इसमें फर्स्ट है स्टाफ पॉलिटिक्स। ये तो हम सभी को पता है कैसी कैसी पॉलिटिक्स होती है। तो उसके लिए सबसे पहले स्टाफ में क्या है, बैलेंस होना चाहिए एक दूसरे के साथ। उसी से अपने अगर हमारे कोलीग्स के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो हम सभी एक दूसरे के साथ मिलके अपने जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको भी क्या है बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। जिसको सर ने एक्सप्लेन किया था, सब ग्रुप्स, ओवर गॉसिपिंग, तो ये पॉलिटिक्स का वही पार्ट है। बैक बाइटिंग, ये उसी को है। पॉलिटिक्स डज नॉट मीन कि किसी की अननेसेसरी बाहर जाके टांग खींचना, वो स्टाफ रूम का पार्ट नहीं है। स्टाफ रूम, विद इन द स्टाफ रूम हम क्या कर रहे हैं, दैट इज द स्टाफ रूम पॉलिटिक्स। तो इसको नेगेटिव सेंस में हम नहीं ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको क्लियर किया है। जी मैम। नेक्स्ट है डेकोरम ऑफ द स्टाफ रूम। डेकोरम मींस प्रॉपर लाइटनिंग जैसे होगी। अगर गर्मी है तो अपने को अगर एसी वगैरह यूज करें तो आप काम जो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, है ना। और प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए उस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल यानी कि एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन हो उस तरीके से। एंड द लास्ट वन इज स्टाफ हायरार्की। जैसे जूनियर सीनियर का एक दूसरे के साथ, जैसे हमारे पास कोई सीनियर टीचर है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट जैसे होनी चाहिए। अगर अपने को कोई काम करवाना है तो आप अपनी रिस्पेक्ट से उनसे बोले ताकि हमारा काम क्या है इजीली हो भी जाए। थैंक यू। प्लीज गिव देम बिग हैंड्स। तो फिर हम किसी को कॉल करते हैं, नहीं प्लीज हमारी हेल्प कर दो, वो जो 30 to 40 मिनट्स का पीरियड होता है वो उससे भी चला जाता है। तो जो हमारा लेसन प्लान होता है वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो जाता है। तो प्रॉपर नेटवर्क जो इश्यू है वो सॉर्ट होना चाहिए। द नेक्स्ट इज ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, कि जो सीबीएसई ने रेशियो दिया हुआ है 30:1, राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग क्लासरूम होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक टीचर और जो बच्चे हैं वो 52 हो। नेक्स्ट इज अटेंशन प्रॉब्लम्स। जब स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार जो टीचर काम करवा रहे हैं बोर्ड पे तो अटेंशन ही नहीं कर पाते, तो हमें जो अटेंशन ग्रैबर्स हैं वो यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है बर्डन ऑफ सिलेबस। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जो सिलेबस है वो बड़े ही अच्छे तरीके से करते हैं और कई बार टीचर भी ये प्रॉब्लम फेस करता है कि जो सिलेबस है वो कैसे कंप्लीट होगा एक एप्रोप्रिएट टाइम में। या तो हमें जो अपना सिलेबस है उसे डिवाइड कर लेना चाहिए पहले ही कि इस मंथ में हम ये करवाएंगे या इस वीक में हम ये चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। और जो बच्चे नहीं कर पाते, अब कई क्लास में ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाते, तो हमें पहले ही उन बच्चों को उनके अकॉर्डिंग ही, जैसे 10 चैप्टर है तो वो बच्चे क्या पता 5 ही कर पाते हो, तो उन्हें उस अकॉर्डिंग ही पहले ही सिलेबस डिवाइड कर देना चाहिए
ताकि जो उनका जो आगे जाके प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। द नेक्स्ट इज लंच बुक्स कि कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स के इशू आते हैं कि हमारा बच्चा तो लंच बुक्स फिनिश ही नहीं करके आता। इवन कि ये कोई प्री प्राइमरी का इशू नहीं है, ये हायर क्लासेस में भी आता है कि बच्चे सिर्फ कैंटीन की तरफ जाते हैं, हम पैसे लेके आए हैं, हमें कैंटीन में जाना है, और पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा जंक फूड खाता है, प्रॉपर जो अपना लंच है वो फिनिश नहीं कर पाता, फ्रूट ब्रेक्स में फ्रूट नहीं खाता, वैसे का वैसे लेके आता है। तो हमें इस बात पे एज अ टीचर भी लंच ब्रेक में, फ्रूट ब्रेक में ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा है, स्टूडेंट है हमारा, वो अपना जो लंच है वो फिनिश करके जाए। इवन कि टीचर्स को भी अपना लंच बॉक्स फिनिश करना चाहिए कि वो बच्चे भी ऑब्जर्व करते हैं कि टीचर ने हाफ चपाती छोड़ दी है, थोड़ा सा कट शॉर्ट करिए। यस श्योर मैम, इतना जोश नहीं दिखाना क्लासरूम में। ओके, लेस ड्यूरेशन। कई बार क्या होता है कि टाइम टेबल ज्यादा एक्सप्लेनेशन, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स बता दीजिए, बिकॉज वो मुझे रवि सर का ऑर्डर है कि लंच रेडी है और जल्दी वाइंड अप करवाइए। चेकिंग ऑफ नोटबुक्स, लेस ड्यूरेशन। ओके, थैंक यू। अभी तक बने नहीं है तो वो कह रहे कि यस मैम मैंने तो बना लिए पर आपने क्यों नहीं बनाए, तो दे आर हैविंग सच कॉन्वर्सेशन। सो फिर वो जो टीचर है वो आगे जाके उनका भी एक फ्रेंड होता है, मतलब हर एक टीचर का एक अपना एक फ्रेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग टू नवनीत मैम तो उनका एक और एक फ्रेंड होगा जिसको जाके मैं भी कहूंगी मैम ये सीक्रेट है, ये हमारे बीच की बात है, किसी को बताना मत प्लीज। तो आगे जाके उनका एक फ्रेंड होता है तो वो आगे जाके उनको कहेंगे कि मैम आप प्लीज मत बताना, फिर आगे जाके वो आगे आप प्लीज मत बताना। ऐसे करते करते फिर पूरे स्कूल को पता चल जाती है वो बात कि मैम ने अभी तक एग्जाम नहीं बनाए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। तो वो बात पहुंचते पहुंचते ऑफिस तक पहुंच जाती है और सो एवरीबडी हैज दैट वन फ्रेंड। और ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, हर स्कूल में होती है, ये जनरल प्रॉब्लम है, ये हमारे स्कूल में नहीं है। ये हर एक स्कूल में आई गेस होती है, राइट। नेक्स्ट इज क्लासरूम। क्लासरूम में सबसे ज्यादा अगर कोई चैलेंज आता है वो होता है नोटबुक कंप्लीशन का। बच्चे जो है बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं या होमवर्क अपना ऑन टाइम कंप्लीट नहीं करके आते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों के एक्सक्यूजेस भी यहाँ पे लिखे गए हैं। कोई कह रहा है कि मैम मैं मैरिज पे गया था तो मैंने काम नहीं किया, कोई कह रहा है मेरी नोटबुक गुम हो गई है। सो देयर आर मल्टीपल एक्सक्यूजेस दे यूज्ड टू गिव अस। सो वहाँ पे ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनकी नोटबुक टाइम पे कंप्लीट हो जाए। थैंक यू। नेक्स्ट भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने इसके साथ नहीं बैठना, तो एक वो इशू है। सेकंड राइटिंग एंड रीडिंग इशू। बच्चों में रीडिंग का बहुत इशू होता है, इंग्लिश रीडिंग नहीं आती बच्चों को, राइटिंग नहीं प्रॉपर करते सही। और थर्ड वन इज एब्सेंस ऑफ माइंड। कई बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं होता क्लास में, वो अपने ख्यालों में रहते हैं। फोर्थ वन इज लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज, जिसपे हमारा स्कूल बहुत जोर देता है बच्चों पे कि उनकी मॉरल वैल्यूज आए। स्पेशल उनकी काउंसलिंग होती है और ये स्पेशल हमारे स्कूल में बहुत बच्चों पे मॉरल वैल्यूज का दिया जाता है। सेकंड इज चैलेंज फेस्ड इन स्टाफ, मिसकम्युनिकेशन। कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि इंटरेक्शन ही कम करते हैं एक दूसरे से, जिससे उनकी मिसकम्युनिकेशन होती है। और कई टीचर्स ऐसे होते हैं कि फेस पे बात नहीं करते, बैक बाइटिंग करते हैं। फेस पे बात करो कि अगले को भी पता लगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, किसी के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं। एंड पोजीशन पावर, सत्य सत्य It's seen sometime कि position power आ जाती है. Not in every school, but in some schools there are HODs. But what they want to do is just to show that they have the power. They overburden the teachers sometimes. That's it. Thank you. And one more thing I would like to add. Ma'am said the remedy for something a challenge. What we have to do is challenges faced in staff room. Remedy that should be done is we should finish the staff room only. Majority of the schools don't have staff. Yeah. Use chalk and duster. Okay. Classroom And staff room. Staff room, cooperation, communication gap, sitting plan, making a group, do not listen other, not arrange the furniture regularly. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Students and teachers communication and challenges in staff room, lack of support, time management, leadership issue, conflict with team, less interaction with each other. Okay, thank you.
Any group? और जब सबने सुना किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के सारे पॉइंट्स, एवरीबडी ऑल ऑफ यू हैव लिसन्ड, आपने एक चीज इसमें नोटिस करी होगी दैट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर similar problems. So we have jotted down, means you people have jotted down n number of problems, challenges which you people are facing, and the challenges you are facing in the classroom as well as in the staff room. I think majority of you. So the purpose of this activity was to make you abreast with the things, the kind of the challenge. The answer is no. You yourself have the answers to every problem, and this is part of emotional intelligence. और उसके ऊपर जो ये challenges को maintain करना या manage करना, this is relationship management. जिस टीचर को रिलेशनशिप मैनेज करना बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ, विद पीयर ग्रुप, विद सीनियर्स आ गया, तो ही कैन बी अवॉर्डेड एज द बेस्ट टीचर. सो हैप्पी क्लासरूम की जो क्वालिटीज होनी चाहिए, दे ऑल दोज क्वालिटीज लाइज विद इन यू ऑल. ओनली थिंग इज वी आर नॉट हैविंग टाइम टू एक्सप्लोर सच क्वालिटीज. जब आपको छुट्टी मिलती है, the day you make it an off day, उसके लिए घर पे just don't sit back and relax with the family. At least for your professional growth, for your career growth, take at least 2 hours Think about positive and constructive, active and positive. Are you ready with that? May I come? Sorry? May I come? Yeah, please. Most welcome. Activities which bring you to be well-being. Okay? Happy afternoon to one and all present here. I am representing the group of pleasure. So, what is pleasure? Pleasure is a synonym of happiness. It is cheerfulness. Satisfaction of emotions is pleasure. So, simple terms में कहे, हमें प्लेजर कब मिलता है? जब सैलरी आती है तभी? Yes or no? Yes. मंथ के बाद सैलरी आती है तभी प्लेजर मिलता है? Yes. सबको? Yes. मुझे तो तभी प्लेजर मिलता है. बट वो जब खत्म हो जाती है सैलरी तो वो भी प्लेजर जो है वो एक फॉर टाइम बीइंग है, शॉर्ट टर्म. यस, अगर आप संडे को कल आने वाले कल को आप प्लान करते हो, मूवी वॉच करके आते हैं, लेट्स वॉच मूवी विद योर फैमिली, विद आवर फैमिली, वो एक शॉर्ट टर्म प्लेजर. ओके, होप इट इज क्लियर. Yes. थैंक यू. एंड फॉर वेलबींग, Happy afternoon for everyone. Happy afternoon, ma'am. Well-being is that what is untimely good for a man. It is welfare and quality also. Thank you. okay, how do you get it? How do you get it? What do you do to have it? पूरा बताइए. When we devote ourselves towards someone. Okay, good. Are you appreciate her? Do you appreciate her for her answer? Thank you, ma'am. So कल से मंडे को हम लोग अपनी क्लास कैसे लेनी है? We should be well planned before, है ना? कि बच्चे जैसे प्लान मेरे ध्यान होते चलते हैं ना, तो कोई बच्चा अपनी सीट से नहीं लेगा. अगर सीट से हिट गए, मैं उस फेवर में हूँ कि बच्चों को फिर पास हो. अगर हम अपना बना करके जितना कुछ समझा सकते हैं, एक मतलब so let me explain such as joy, right, interest and pride. आपको किसी बात की खुशी हो रही है, आपने अपना प्राइड के लिए आगे क्या कर रहे हो? What are you doing to have pride in your life? And yes, though there are negative things happening in our at our homes also. बच्चा बीमार है, right? या कुछ भी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हम कह सकते हैं. कोई भी मैं I don't want to think about negative things.
then also sometimes we have to speak about that कि उसके होते सोते हम लोग सैडनेस को इग्नोर करके उस एंगर को, कोई हमें गुस्सा दिला रहा है, किसी बात से हमें गुस्सा आ रहा है, उस गुस्से से हट करके थोड़ा हम उसके लेवल तक आकर के सोच करके अगर हम अपनी काम के लिए, आगे के लिए, अपने जॉय के लिए या हैप्पीनेस बनाने के लिए हमें उन चीजों को इग्नोर करना पड़ता है, तभी हम लोग हैप्पीनेस ला सकते हैं। यस, और हैप्पीनेस कहाँ से स्टार्ट होती है? क्लासरूम की हैप्पीनेस की बात करें तो इट स्टार्ट्स विद अस ओनली। जब तक हम खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे नहीं चलेंगे, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर लिटिल चिल्ड्रन, भले वो स्टूडेंट्स हो, भले वो आपके घर के बच्चे हो।